Hello everyone. Welcome to the next lecture on the optimization technique. Today I will explain to you how you can solve the linear programming problem with the help of the dual simplex method. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have learned the concept of the graphical methods, simplex method, big M method, and many more lectures available to solve the given LPP. And you can find all these lectures at my YouTube channel, playlist name optimization techniques in Hindi. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे all those lectures related to the linear programming problems are available with a very simple manner. तो इन सभी लेक्चर्स में जितने भी ग्राफिकल मेथड सिंप्लेक्स बिग एम टू फेस एंड सो ऑन, इसका पर्पस क्या होता था? द वन पर्पस इज वी कैन सॉल्व द एलपीपी, बट इसकी कंडीशन क्या होती थी, रिक्वायरमेंट क्या थी? वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. फाइन, हमारा टारगेट क्या होता था? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस एंड वी कैन फाइंड द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन. ऐसे ही करते थे हम. फाइंड ऑप्टिमैलिटी मींस अगर प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन है, then we can say zj minus cj is greater than equal to 0 for all j. Then we can say the problem is optimal. Fine. But in the dual simplex method is again the one of the method for solving the linear programming problem. But इस dual simplex में हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं. हमारे पास सोल्यूशन जो आपके पास ऑप्टिमल होगा, लेकिन वो इनफिजिबल है. अगर वो इनफिजिबल है तो ऑप्टिमल भी किसी काम का नहीं है. तो आवर टारगेट इज टू कन्वर्ट द ऑप्टिमल कंडीशन टू द फिजिबल वन. क्योंकि हम हमेशा जानते हैं अगर आपके पास कोई भी एलपीपी है, एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देन वी ऑलवेज हैज द टू टास्क to check the feasibility and to check the optimality. If we already have the feasibility and our target is to provide the optimality, that means the method name is called as the simplex method. Simplex method में क्या होता है? We already have a feasibility, find जिसको हम क्या बोलते हैं? Basic feasible solution. Then our target is to proceed towards the optimality. But dual simplex में हम क्या करेंगे? That's the reverse side. We start from the optimality conditions and then we can make it as a feasible. So we start from the infeasible solution, but that is the optimal one. Optimal one means zj minus cj must be greater than equal to 0. But वो infeasible है, so our target is to make them as a feasible. Clear? Now, but either you can solve by the simplex method or by the dual simplex method. The final optimal value of the z is always same. Now the question arises is why there is a need of the dual simplex method. The first most important advantage is the dual simplex method. In the dual simplex method, we do not require any artificial variables. इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाओगे, कोई भी कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वालिटी का नहीं होगा. बिकॉज whenever the constant is greater than equal to sign, you always write as a minus of the slack or surplus plus artificial variables. और अगर equality है, then we can write as the artificial variables. But in the case of the dual simplex, we can never use as the artificial variables. इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट ग्रेटर देन का और इक्वालिटी का नहीं होगा. फाइन. और अगर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज नहीं करोगे, तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दैट? वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ द मनी, मैन पावर एंड द टाइम व्हाइल सॉल्विंग द एलपीपी यूजिंग ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड? किस पर्पस के लिए काम आता है वो भी बता देता हूं. जैसे तो आपको ये कहा गया कि एक एलपीपी है. फाइन. You can easily solve this LPP with the help of the simplex, big M और two phase. लेकिन स्टेटमेंट में कह दिया गया है solve the LPP by using the dual simplex method. क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि optimal value, that is the value of the Z, is always same. Either you can solve by dual simplex or by simplex method. Fine. तो अगर आपको इस क्वेश्चन को you have to solve by the dual simplex method, answer will again the same. और सेकेंड काइंड क्या हो सकती है कि अगर पहले आपको कह दिया गया यू कैन राइट द ड्यूल ऑफ द एलपीपी. फाइन. इसका ड्यूल लिख लीजिए आप. फाइन. एंड देन यू कैन सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड.
और थर्ड काइंड क्या हो सकती है, आपसे ये कहा जा सकता है कि इस एलपीपी को फाइन, इस एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करिए, फाइन, और जो भी सिंप्लेक्स मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हेल्प से आप ड्यूल का सॉल्यूशन फाइंड करिए। और ये ड्यूल का सॉल्यूशन फ्रॉम द ऑप्टिमल टेबल कैसे फाइंड करोगे, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इज द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ द मेथड्स, फाइन। आप देख सकते हो हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूल एलपीपी, 4 डिफरेंट मेथड्स, टाइप 1, मेथड 2, मेथड 3, फाइन। चलिए आप प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले whenever you have a given LPP, always convert into the maximization form, फाइन। और जितने, बिकॉज आपको ड्यूल सिंप्लेक्स लगा रहे हो तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का कांस्टेंट नहीं चाहिए, और जो भी कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन का होगा उसको लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फाइन। जैसे ही आप स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करोगे, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, क्लियर। जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आर सिमिलर टू द सिंप्लेक्स मेथड, योर टारगेट इज टू कंप्लीट दिस टेबल, फाइन। how you can complete that, your target is to find the leaving variable, find the entering variables and so। इस केस में लीविंग और एंटरिंग वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, लीविंग वेरिएबल सबसे पहले हम इसमें लीविंग वेरिएबल फाइंड करेंगे, लेकिन जब हम सिंप्लेक्स मेथड करते थे, सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे, एंटरिंग वेरिएबल, फाइन, और उसके बाद लीविंग वेरिएबल फाइंड करते थे। लेकिन ड्यूल सिंप्लेक्स में सबसे पहले हम लीविंग वेरिएबल फाइंड करेंगे एंड देन एंटरिंग वेरिएबल। और वो कैसे फाइंड करेंगे, वी विल टेक लिविंग वेरिएबल इन दो -b1 -b2 जितने भी ये नेगेटिव टर्म्स होंगे फाइंड सॉल्यूशन कॉलम के अंदर, इसमें से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपको ले लेनी है, फाइन। जो भी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी, मान लो आपके पास b2 इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स b2 इज योर लिविंग वेरिएबल, फाइन। अब एंटरिंग वेरिएबल कैसे निकालोगे, और ये आपके जेड माइनस सी जे है, फाइन। इस रो में इन 4 वैल्यूज में लाइक ए बी सी और डी, इन 4 वैल्यूज में वो नंबर देख लो जो आपके पास लेस देन 0 है, फाइन। मान लो आपके पास बी और सी आपका लेस देन 0 मान लो, फाइन। तो आपको एंटरिंग वेरिएबल कैसे निकालना है, यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ द जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय दिस बी, और एक सी आपका नेगेटिव है, जेड जे माइनस सी जे divided by C, fine, and then find the minimum absolute ratio, remember students minimum ratio निकालनी है with the absolute sign, fine। तो आपको सिर्फ वही उसी वेरिएबल के साथ डिवाइड करना है जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको, फाइन। जैसे आपको एंटरिंग वेरिएबल मिल गया, लिविंग वेरिएबल मिल गया, यू कैन फाइंड द बॉक्स एलिमेंट, और उसके बाद सेम प्रोसीजर आप कंटिन्यू करते रहोगे until you will get zj minus cj all are my positive and all the values of the solutions are also positive। ये आपका सिंपल प्रोसीजर है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स, फाइन। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। पहला स्टेप क्या है आपके पास, जो भी प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन, सारी प्रॉब्लम को पहले मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो, ये ऑलरेडी है, और जितने भी कांस्टेंट है सबको लेस देन में कन्वर्ट कर लो। आप देखो आपका सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट कांस्टेंट लेस देन का नहीं है, तो हाउ यू कैन कन्वर्ट द फर्स्ट कांस्टेंट इनटू द लेस देन, आई कैन मल्टीप्लाई द फर्स्ट कांस्टेंट बाय -1। तो आपके पास फर्स्ट कांस्टेंट क्या हो गया, -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -2। उसके बाद क्या करोगे, नाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइन। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन जेड, इसमें तो यही रहेगा, कांस्टेंट में पहले में स्लैक वेरिएबल आ जाएगा, दूसरे में स्लैक वेरिएबल, थर्ड में स्लैक वेरिएबल्स, एंड ऑल द वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। अब जैसे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद क्या करना है, आपको टेबल को ड्रॉ करना है, फाइन। हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव, x1 x2 s1 s2 s3, क्लियर, एंड योर टारगेट इज टू फिल द वैल्यू अंटिल यू विल गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वैल्यू फिल करते हैं। पहले कॉलम में x1 की वैल्यू कितनी है, -1, फर्स्ट कांस्टेंट में x2 की वैल्यू -1, s1 की वैल्यू 1, s2 इज 0, s3 0, राइट हैंड साइड इज माई -2। सेकेंड कांस्टेंट में x1 की वैल्यू 2, s2 0 1 0, राइट हैंड साइड इज 10, x1 plus x2 and plus s3 which is equal to 8,
क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें से कौन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है? S1, S2, S3. So you can write as S1, S2, S3. जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा यू कैन राइट दैट. फाइन. अब ये जेड माइनस सी कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास x1 की वैल्यू -2 है, -3, 0, 0, 0. तो आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू. S1 will be 0, S2 is 0, S3 is 0. And how you can find? वैसे ही करेंगे जिस तरह से हमने सिंप्लेक्स मेथड में करा था. बाकी सारा प्रोसीजर सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही है. 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1. ये तो हो गया आपका जेड माइनस CJ, दैट इज अ कॉस्ट फैक्टर माइनस ऑफ माइनस. तो ये कितना हो गया आपका 2. Similarly for the next one, 0, 0, 0 plus 3, 0, 0, 0 and 0. आप देख सकते हो ZJ minus CJ are greater than 0. Always remember student, simplex method is applicable or dual simplex method is applicable only. Dual simplex method is applicable only when ZJ minus CJ is greater than equal to 0 for all j. अगर इसमें से कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई यहां तक तो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. सिमिलरली सिंप्लेक्स मेथड इज एप्लीकेबल. सिंप्लेक्स मेथड बिग एम टू फेज, ये मेथड कब एप्लीकेबल होते हैं? व्हेनेवर ऑल दोस वैल्यूज अंडर द कॉलम सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फाइन. अगर तो ये सारे पॉजिटिव है देन यू कैन अप्लाई द सिंप्लेक्स मेथड, और अगर आपके पास ZJ माइनस CJ पॉजिटिव है देन यू कैन अप्लाई दी ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. फाइन. अब क्योंकि आपका ये नेगेटिव है तो आप देखो इन सभी में से कौन सबसे बड़ा नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव. एक ही नेगेटिव है ना आपका, तो दैट इज माय लीविंग वेरिएबल. फाइन. अब आपको एंट्री करनी है तो इसमें से वो सारे ले लो जो नेगेटिव है. ये दो वैल्यूज नेगेटिव है, इनकी रेशियो ले लो 2/-1 एंड 3/-1. फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट. तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 2 and 3. So the minimum is my 2. X1 is your entering variable. Fine. X1 entering है, S1 is the leaving, so -1 is my box element. तो S1 को लीव करके आपको X1 लिख देना है. क्लियर? और बाकी एंट्रीज कैसे फिल करनी है, जैसे मैंने आपको सिंप्लेक्स में बताया था, ये आपका हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा 1, 0, 0. S2 सेकेंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, 1, 0. S3 is the third column of the identity matrix. Fine. और इसकी वैल्यू आपकी 0, 0, 0 है. क्लियर? और जहां पे बॉक्स है इस पूरी लाइन को -1 से डिवाइड कर दो, तो +1, +1, -1, 0, 0 प्लस ऑफ 2. नाउ योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द रिमेनिंग थिंग्स. तो वो कैसे अपडेट करोगे? जो वैल्यू आपने निकाली R1, बाकी सबको नाम दे दो R2, R3, R4. आपका टारगेट है इसके यहाँ पे इसके नीचे भी 0 बनाना सारा और इसके ऊपर भी 0 बनाना. तो आप R2 की वैल्यू को 0 कैसे बनाओगे? विद रिस्पेक्ट टू R1. इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करूं? आई कैन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट देम. फाइन. तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 1, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो प्लस ऑफ 2, 0, 0, 2 से मल्टीप्लाई करके आपको प्लस करना है, दैट इज माई -4. क्लियर? सिमिलरली R3 को कैसे बनाओगे? R3 की यहाँ पे 2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूं. और सिमिलरली R4 को कैसे बनाओगे? यहाँ पे 1 है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस. मेक श्योर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऑलवेज बी द सेम. इट मस्ट बी सेम. ये सेम होना चाहिए आपके पास, और ये सेम भी वही होगा जिसमें आपने एंट्री ऑपरेट करी है. क्लियर? तो कितना आंसर आ गया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले से माइनस करना है आपको पास. फाइन. सो दैट विल बी -1, दैट विल बी 2. फाइन. दैट्स अ 1, 1 एंड इट विल बी 6. सिमिलरली यू कैन R4 इस लाइन को इसमें से माइनस करना आपको, तो 0, 0, 1, 0, 1 एंड 6. फाइन. अब देखो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई. फाइन. और ZJ माइनस CJ भी आपका पॉजिटिव है, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच.
ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच। अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया तो आपके पास कितना आंसर हो गया, x1 का आंसर देखो इसमें से कितना है 2, x2 का आंसर कितना है, इसमें x2 है लिखा ही नहीं हुआ, दैट्स 0 एंड द वैल्यू ऑफ द z इज माई -4 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें तो x3 था ही नहीं आपके पास, फाइन। और आप अपना आंसर एग्जाम में चेक कैसे कर सकते हो, ये x1 और x2 की वैल्यू आपके पास जो ओरिजिनल एलपीपी थी, विच वन इज ओरिजिनल एलपीपी, ये थी ना, x1 का आंसर कितना है आपका 2, x2 विल बी 0, इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिल करो, चेक करो क्या आंसर -4 आ रहा है आपका, यस इट इज a -4, fine. So this is the one first example, you can solve it in a very simple manner, fine. I will upload the next video with the help of the 5 more examples, fine, 5 or the 10 jitni aap kahoge, I will upload them in the my next lecture. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students, happy learning.